Hello everyone, this is Rabia Tahir and you're listening to the Brown Girl Dance. You might have noticed if you are a regular listener, obviously you are a regular listener, but you might have noticed that I haven't put in any intro music in here and I wouldn't be putting any outro music or the interval music in here because it's Ramzan or I would be practicing not listening to music in Ramzan, and I know a lot of people do that too. So इस वजह से I don't want to put in music in the podcast episode because I want this podcast to be something that you all could listen to while you're fasting or even at night or whatever time you want. Like, and I'm not putting music in outro and intro and interval for the next couple of episode. I mean, like 4 or 5 episodes. I don't know. Yeah. So first of all, that. Secondly, before we start in anything, I just want to, matlab, inform you all. Not inform you all, like in, you all might have already know that we experienced an earthquake today in Lahore, and I don't know, I don't know और किस जगहों पे आया है, क्योंकि I heard कराची में नहीं आया और my dad was telling me कि फैसलाबाद में भी नहीं आया. फैसलाबाद is very near to Lahore, so I don't actually know कि किस किस जगहों में आया है. I heard India में आया है, which makes sense obviously क्योंकि Lahore shares a border with India. लेकिन I actually don't know, but I really 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 hope कि everyone is fine out there. It was very intense. I heard it was very intense. To be honest, I didn't felt it क्योंकि I was out. Uh, Actually, we were just coming in. I live in an apartment. We live in an apartment complex. तो नीचे जो है ना, there's this parking. So we parked our car and me, my mom and my dad. And we were carrying our bags and going inside. लेकिन मुझे बहुत शोर आ रहा था, which is very unusual क्योंकि it's very quiet out there in the outside the apartment complexes or the police society. It's very quiet. तो there was a lot of noise I was मतलब कि I was hearing. तो मैंने अपने माँ बाप को कहा कि माँ बाप मैंने अपने मामा पापा को कहा कि माँ बाप is such a बदतमीज way of referring to them. मैंने अपने मम्मा पापा को कहा कि मुझे बहुत शोर आ रहा है. किस चीज़ का शोर है? क्योंकि it was very unusual. तो उन्होंने भी देखा. उन्होंने कहा पता नहीं. Then we started seeing people coming out of our building. Then there was this lady. She told us कि ज़लज़ला आया, earthquake आया है. तो फिर हम बहुत परेशान हो गए क्योंकि एकदम से मतलब the whole street, the whole मतलब कि everything. I haven't seen this many people outside of their apartment or outside मतलब कि in that street ever since I have moved in here. इतने लोग थे मैंने इतने लोग कभी भी नहीं देखे. स्ट्रीट पे एक दो लोगों से ज्यादा होता ही नहीं है कभी भी. ऊपर से इतना शोर. तो फिर सारे मतलब कि खड़े रहे कुछ अरसे के बाद फिर सब अंदर चले गए. लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरा जिन लोगों से कांटेक्ट है वो सारे बहुत ज़्यादा नहीं. लेकिन मैंने क्यों बोला बहुत ज़्यादा, बट दे आर फाइन, दे आर डूइंग वेल. कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई माली नुकसान नहीं हुआ. आई एम सीइंग पिक्चर्स ऑफ पीपल जिनके दीवारें में वो आ गया है, क्रैक्स आ गए हैं. तो मतलब कि आई थिंक के the people who suffer the most from earthquakes are the people who live in the areas जहाँ पे जो घर हैं वो इतने नहीं स्ट्रांग होते, इतने पक्के नहीं होते. और वो हमारे होता है पुअर मतलब के जो लोअर क्लास पीपल हैं. और आई थिंक दैट आई होपफुली और मतलब आई प्रे कि उनका भी कोई जो है फाइनेंशियल या फिर पर्सनल ना हुआ हो लॉस, क्योंकि इट्स वेरी सैड एंड वेरी अनफॉर्चुनेट. एंड आई होप कि एवरीवन इज वेल. आई रियली रियली होप. न्यूज़ पे तो वैसे इस तरह का कुछ नहीं आ रहा कि खुदा ना खास्ता कोई इस चीज़ से जाम बहक हो गया या किसी का खुदा ना खास्ता घर का कुछ मतलब कि हो गया. लेकिन इतना इंटेंस था तो आई होप कि किसी का ना हुआ हो और आई होप एवरीवन इज फाइन एंड सेफ. मूविंग ऑन. मैं
I just, मतलब कि minus the earthquake, I really had a very good day. I had a very good time with my friends out. It was very nice. We went to an indoor play area thing, or it was very fun. It was actually my first time, not my, it was my first time going in an indoor place जहाँ पे rides जो हैं are indoor. I have seen outdoors. If you are from Lahore, you would be very familiar with Joyland. If even if you're from Pakistan, or even, or if you're living outside Pakistan and you are a Pakistani, तो भी you would know this famous place called Joyland. That's the only ride wala. That's the only amusement park Pakistan. No, no, it's not the only amusement. I can't even pronounce. Acha. That's not the only park containing rides in Pakistan, but that's the most famous one, and I believe the oldest. Lekin this was my first time seeing a what again, seeing a indoor, not, I have seen an indoor play area where there's games and all, but I haven't seen rides in it where you can like rides, ठीक है ना, literal rides like roller coaster and dodging cars, etc. ठीक है, so this was my first time seeing those, or so we went inside. मैं हालांकि there is this mall, Emporium Mall in Lahore. मतलब you would be very familiar with that too. Um, I have been to Emporium Mall so many times I can't even count. Obviously, we have, जब हम इधर नहीं रह रहे थे. I'm so getting fumbling so much today. This episode is not gonna be nice. लेकिन I'm already 6 minutes in. I can't really count. अच्छा, तो जहाँ जब हम जो एम्पोरियम मॉल है उसके अंदर ग्रोसरी स्टोर भी है, तो हम हमेशा एम्पोरियम मॉल में बहुत बार गई हुई हूँ, और बहुत बार गई हुई हूँ. तो एम्पोरियम मॉल इज बेसिकली, यूज्ड टू बी बेसिकली माय सेकंड होम, लेकिन वी मूव्ड सो इट्स वेरी फार अवे, सो आई वेंट इन एम्पोरियम मॉल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, and I went in the play area of it that had rights to the for the first time ever, even though I was Emporium Mall was my second home. Like, and I went in there. So finally, I had people who were willing to purchase a card with me and willing to invest in that type of enjoyment instead of buying food. That's what I mean. क्योंकि I always wanted to go inside that fun factory. So we went in and we really enjoyed a lot. We took, but again, I think that the indoor whatever, I don't know what I could call it, but it's literally called Fun Factory. So the indoor Fun Factory is very expensive as compared to Joyland. ठीक है, लेकिन it was fun. I do not regret the money I spent over on those rides. We took 3 rides and played like 2 3-ish games, and it was fun. It was a great time. I had a very 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 great time, and it made me very happy. और उसके बाद I am not wanting and hoping any further plans, especially for Ramzan. I want an अफ्तारी outside, लेकिन अभी I'm not planning for that क्योंकि I just, मतलब कि I just came back. I just नहीं, अभी मुझे 4 5 घंटे हो गया है. I came, मतलब कि I just had a plan, so I cannot plan another plan. I, मतलब कि I would be having an iftari, लेकिन I would be fine having an iftari with my family too outside, but I just want to have an iftari outside. Lekin it was a very fun day. The fun part wasn't the fact that I really regret not learning how to drive, or not knowing how to drive. मतलब I learned how to drive, लेकिन not practicing how to drive. So basically जब भी ऐसा कोई plan होता है ना, तो उसमें मैं बैठ के regret कर रही होती हूँ कि I wish I could practice how to drive and I could have a hand on driving, so that me and all my girlies shouldn't be dependent on any male, क्योंकि फिर बहुत मतलब कि tension होती है, और मतलब कि I think I don't like it. और तो मुझे हर प्लान में ये रियलाइजेशन होती है, वापस जाते थे कि यार काश मैंने सीख ली होती, अपनी गाड़ी होती, ना मुझे टेंशन होती, ना ही मेरी दोस्तों को टेंशन होती, लेकिन मुझे होती है. और बात ये है कि आई एम गोना, और इट्स वेरी एम्बैरेसिंग, आई एम गोना टर्न 23 एंड आई डोंट इवन नो हाउ टू ड्राइव. आई थिंक इट्स, मतलब कि, लेकिन इन माय डिफेंस आई नो हाउ टू ट्रेवल लोकली
तो that balances. Or I would love, I am personally more comfortable in traveling on local than travel than to drive. क्योंकि I learned driving. Here is the story. I learned driving, or I would practice it, but on one fine day, not fine, it wasn't a fine day. On one unfortunate day, I hit a car, and it was my fault. I panicked, or I could not forget this that scene ever. क्योंकि जब भी मैं गाड़ी की उस सीट पे बैठती हूँ तो वो सीट मेरे सामने आ जाते हैं। और इट वाज वेरी इनिशियल, मतलब कि तब मुझे बिल्कुल 5 दिन हुए थे गाड़ी सीखे हुए, तो इट वाज वेरी इनिशियल एंड एवरीवन टेल्स मी कि होता है बहन, होता है, कुछ नहीं होता, आगे बढ़ना है। लेकिन मैं उस चीज़ को भुला नहीं पाई। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई थी उससे पहले। मैं बड़े आराम से चलाती थी, बहुत मज़े से चलाती थी, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद से जब भी मैंने चलाई है तो आई एम शिवरिंग एंड आई एम स्वेटिंग, और मैं हर चीज़ के बाद ब्रेक मार देती हूँ। मतलब कि आई डोंट इवन, मतलब कि मैं स्लो गाड़ी चला ही नहीं सकती, ठीक है ना? मतलब आई कैन ड्राइव, आई कैन नॉट ड्राइव विद ट्रैफिक। मुझे नहीं लगता मुझे डील करना आता। मैं पैनिक कर जाती हूँ और मैं हर चीज़ पे ब्रेक मार के साइड पे लग जाती हूँ कि हाँ आप पहले गुजरे। और जो मेरे साथ मेरा भाई बैठा होता है वो कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है, चलती रहो तुम आराम से, तुम्हें क्या है? तो इट मतलब कि इट रियली स्ट्रेसेस मी आउट। आई वांट टू लर्न, लेकिन आई द thought of being in a traffic, or um, driving in that roundabout which is outside our society, which is busy all the time, freaks me out. Because there is no way I could manage to go through that without hitting anyone or without panicking. और दूसरी बात ये कि वी हैव अ मैनुअल कार, ठीक है ना, और आवर कार इज वेरी टफ। तो आई थिंक विद ऑटोमेटिक आई हैव ड्रिवन आई हैव ड्रोव ऑटोमेटिक कार, और इट्स वेरी इजी, इतनी इजी होती है। जब आपका दिल चाहे तो आप ब्रेक दबा दो, जब आपका दिल चाहे आप रेस कर लो, गियर की टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। ऐसे ही है जैसे डॉजिंग कार है, क्योंकि मैंने आज डॉजिंग कार चलाई है, मैं इसलिए कह रही हूँ। लेकिन मैनुअल गाड़ी में अगर आपको ब्रेक दबानी है तो आपको उससे आधा मिनट पहले सोचना होता है, आधा मिनट भी नहीं, मिनट पहले सोचना होता है कि अच्छा मुझे ब्रेक दबानी है तो पहले मुझे क्लच पे जाना है, ठीक है? इट्स वेरी स्ट्रेसफुल, वेरी स्ट्रेसफुल, मतलब मैं बता भी नहीं सकती। और फिर गियर चेंज करना, और फिर ये वो, मतलब इट्स इट्स वेरी स्ट्रेसफुल। और स्पेशली जब आप किसी लेन में हो और आपने स्लो स्लो गाड़ी चलानी है, या ट्रैफिक जैम है आपने स्लो स्लो चलानी है, या जैसे मैंने कहा राउंड अबाउट है या कुछ भी है, तो वो मुझे, मतलब कि वो मेरे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपका एक पैर क्लच पे होना चाहिए, एंड इट्स वेरी स्ट्रेसफुल कि आपको कितना क्लच छोड़ना है और हल्की सी रेस देनी है ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता जाते रहो। अगर आपने ज़्यादा रेस दे दी तो आप एकदम से दूसरी गाड़ी को भज भी सकते हो, ठीक है ना? तो इट्स इट्स सो स्ट्रेसफुल, मुझसे नहीं होता, मुझे सोच के कुछ होता है। लोग कहते थे, मेरी ना दोस्तें कहती थी, मतलब कि जब मैंने ये सब कुछ नहीं किया था ना, कि दे गेट पैनिक्ड, मतलब कि दे गेट पैनिक्ड सीइंग ट्रैफिक व्हाइल ड्राइविंग। और मैं कहती थी ये कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है, इट्स रियल। मतलब कि आई रियली वांटेड टू डू, मतलब कि इफ देयर इज वन थिंग दैट आई थिंक आई लैक इज दैट कि आई कांट ड्राइव। और मुझे पता है उससे मेरी, मतलब कि माय मॉम, मतलब कि रियली wants me to have a hand on driving too, क्योंकि उनको भी इस वजह से बहुत सफ़र करना पड़ता है। क्योंकि एवरी टाइम वी हैव टू गो, आइदर वी हैव टू, मतलब कि कॉल उबर और करीम, which is also not that convenient option। और लोकल जो है ट्रांसपोर्ट यहाँ से कोई चलती नहीं है, वरना आई एम अ लोकल ट्रांसपोर्ट गर्ली। आई ऑलवेज लुक अप फॉर रूट्स के बस मुझे कोई चीज़ मिल जाए जिसमें मैं बैठ के चली जाऊँ, मतलब कि इट्स सो चीप एंड कन्वीनियंट। तो बंदा क्यों अपनी व्हीकल निकाले व्हेन देयर इज लोकल ट्रांसपोर्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे बहुत अमीर लोग हैं, तो वो शायद लोकल ट्रैवल नहीं करना चाहते या क्या है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं चलता। तो बात ये है कि हाँ ऑब्वियसली, आई डू थिंक कि हैविंग अ स्कूटर, मतलब आई कैन थिंक अबाउट हैविंग अ स्कूटर, आई थिंक, मतलब कि आई वोंट पैनिक। आई डोंट नो, मैंने वो चलाई नहीं है तो शायद मैं जैसे गाड़ी का सोचती थी बस उसका भी सोच रही हूँ। लेकिन आई थिंक दैट्स अ स्मॉल, मतलब कि जो स्कूटर होती है वो थोड़ी, मतलब ऑब्वियसली एरिया वाइज छोटी होती है, तो उससे इतना जो है वो नहीं आप स्ट्रेस होता
आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये चीज सीखनी है, लेकिन मुझे समझ नहीं सीखनी है। द ओनली थिंग आई कैन डू इज दैट कि आई कुड बाय अ मतलब कि ऑटोमेटिक कार फॉर माई सेल्फ, लेकिन दैट्स मतलब कि आई कैन आइदर डू अ मास्टर्स डिग्री और आई कैन गेट माई सेल्फ अ कार। तो let's see what do we choose. लेकिन that's the rant, that's the brown girl rant, actual brown girl rant. So I don't know what to do. If you guys have any tips, so please let me know. I really want to, मतलब कि it's not even the fact के yeah, I wanted to learn how to drive क्योंकि I wanted to feel empowered और वो सब कुछ। और लड़कियों को गाड़ी चलाना यहाँ पे बहुत बड़ी बात समझी जाती है कि ओ शी कैन ड्राइव अ कार, शी इज इंडिपेंडेंट। तो मुझे था कि यार मैंने सब कुछ कर लिया है, या मतलब कि आई नो एवरीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, एक मुझे ड्राइविंग नहीं आती, मुझे ये भी सीखनी है। लेकिन अब आके मुझे सिर्फ शौक ने मतलब कि शौकी के लिए नहीं सीखनी है ये सब, मतलब कि टिक्स मतलब कि सब चेक बॉक्स पे टिक करने के लिए नहीं सीखनी। इट्स एक्चुअली अ नेसेसिटी। देन एनी टाइम मुझे कहीं बाहर जाना हो तो स्पेशली फ्रेंड्स के प्लान के साथ, तो आई फील वेरी बैड। मैं चाहती हूँ कि मुझे आती होती, मैं अपनी सारी गर्ल फ्रेंड्स को लेके जाती ताकि उनको भी टेंशन ना लेनी पड़ती किसी की। और मतलब कि क्या सीन है, तो मतलब कि दिस इज समथिंग दैट आई रियली रिग्रेटेड टुडे। और लेट्स सी मतलब व्हाट मतलब आई हैव डिसाइडेड कि मैं जाऊंगी कल और थोड़ी सी प्रैक्टिस करूंगी, लेकिन लेट्स सी, मैं ये रोज सोचती हूँ रात को और अगले दिन मैं करती नहीं हूँ, अगले दिन पे डाल देती हूँ। तो तो ये सीन है। लेकिन दैट्स इट विद द रैंट। ये थी अपडेट। This is not what you're here for, so I should shut up. Basically, what you're here for is actually the fact that it's Ramadan after 2 days, क्योंकि कल नहीं आज, कल, हाँ कल सऊदीया में चांद नजर नहीं आया, और आई डोंट नो व्हाई, लेकिन वी बेसिकली प्रैक्टिस रमजान अ डे आफ्टर सऊदीया एंड अदर कंट्रीज, क्योंकि हमारा चांद एक दिन बाद नजर आता है। अब मुझे नहीं इस चीज़ की लॉजिक समझ आती है, और मैं इस चीज़ में पढ़ूंगी भी नहीं, ये ईद पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन तो सऊदीया में कल वेडनेसडे को नहीं है रोज़ा। तो सऊदीया में इसका मतलब थर्सडे को है, मे बी हमारा भी थर्सडे को हो जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हमारा फ्राइडे को होगा। तो आफ्टर 2 days वी ऑल वुड बी प्रैक्टिसिंग रमजान। रमजान इज अ month of blessings. Ramzan is the most special month, मतलब if for any Muslim. I told you all in the last episode कि I would make a bonus episode जिसमें मतलब कि I would plan for Ramzan, लेकिन I procrastinated एंड आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि वेडनेसडे को, जिस दिन मेरी एपिसोड्स आती हैं डेली वीकली, मेरी वेडनेसडे को आती है, तो वेडनेसडे तक रमज़ान स्टार्ट हो चुका होगा, तो मुझे प्लानिंग वाली एपिसोड उससे पहले बनानी चाहिए। लेकिन देन आई रियलाइज कि एक तो आई वॉज प्रोक्रेसिनेटिंग, आई वॉज लेजी, एंड देन माई मोम टोल्ड मी कि रमज़ान इज एक्चुअली माइट बी ऑन थर्सडे और फ्राइडे। तो मैंने कहा परफेक्ट, फिर तो मैं वेडनेसडे को ही रेगुलर एपिसोड लगाऊंगी। तो फिर ये सीन हुआ। लेकिन we are here, we are doing it, and we are gonna in it and gonna be in it in a while, and we're gonna talk about it, or I'll take a break and you won't know। बल्कि मैं फॉरन स्किप कर दूंगी, तो मुझे ये कहने की भी जरूरत नहीं क्योंकि हम इंटरनल म्यूजिक तो डाल नहीं रहे, लेकिन मैंने ऑलरेडी कह दिया है। तो आई कम बैक, आई जस्ट नीड टू चॉक ऑन। So, Ramadan is starting, and some of you all might be listening to this while fasting. So, Ramadan Mubarak to you all. Ramadan is the month which is special for Muslims all around the world, for every Muslim, and it's the favorite month of every single Muslim I know. It's a very special month, and everyone is trying to be the best version of themselves in that month. It's very peaceful, it's very enjoyable, it brings a lot of happiness, it brings a lot of purity, it brings a lot of spirituality in you. Everyone is trying to be extra kind, not trying to be, but everyone is going extra hard to be more helpful to other people. They're avoiding things like music, they're avoiding saying curse words, they're avoiding being angry on someone. So they're avoiding all the bad habits, and they're trying to be a good version of themselves, a good Muslim. They're trying to be
a pure version of themselves, which is why Ramadan is very, 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 very special for all the Muslims. Then whatever deed you're doing in Ramadan, whatever good deed you're doing in Ramadan, it gets multiplied by 70 as a reward. कि आप जो भी काम करते हो उसका आपको 70 गुना ज्यादा सवाब मिलता है. Fasting, we fast in Ramadan. So fasting is the fourth pillar of Islam, so it's first on everyone. I won't go into कि किस उम्र फर्ज होता है, किस पे है, किस पे नहीं है, क्योंकि I am not certain about it. With my personal experience, I personally started fasting when I was maybe 7ish or 8ish, मतलब कि तब मैंने अपना पहला रोजा रखा था. लेकिन when I was 10 years old and in fifth grade, तो I remember तब मैंने पूरे 30 के 30 रोजे रखे थे. और मैंने प्लान नहीं किया था बिल्कुल भी कि मैं सारे रोजे रखूंगी. मैं और मेरा भाई जो है, we are of kind of same age, we were in the same class. तो हमने पहला रोज़ा रखा, फिर हमने दूसरा रखा, फिर हमने तीसरा रखा. हमने कहा जब अच्छा नहीं दिल चाहेगा ना, या जिस दिन थक जाएंगे उस दिन छोड़ देंगे, क्योंकि वी वर लाइक 10 years old एंड वी वर इन फिफ्थ ग्रेड. लेकिन ये हुआ कि हम रखते गए, रखते गए, रखते गए. उसके बाद ये होता था कि तो हम दोनों में ना थोड़ा सा कंपटीशन हो गया कि ओ दोनों के पूरे पूरे अभी तक जा रहे हैं. तो फिर एक जब कहता था ना कि ओ मेरा मतलब कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन दूसरा कहता था कि नहीं मैंने तो नहीं छोड़ना. तो मैं जो हूँ या मेरा भाई जो है, जैसे मैं अगर छोड़ना चाहती हूँ लेकिन मेरा भाई के कि नहीं मैंने तो नहीं छोड़ना, तो मैं इसलिए रखूंगी क्योंकि आई डोंट वांट टू गो बिहाइंड इट हिम इन द नंबर्स. मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के इक्वल इक्वल रहें. मैं नहीं चाहती कि आई डोंट वांट हिम टू विन. which was मतलब कि I don't know if that's a nice approach for fasting. लेकिन we were like 10 years old, so I think लेकिन we मतलब कि that made us fast all the days and we were very happy. It wasn't just solely for the competition कि हम दोनों के इक्वल होने चाहिए. लेकिन मेरा भी छोड़ने का नहीं दिल चाहता था, क्योंकि मेरे साथ जो मेरा भाई है जो कि मेरे साथ एक्सपीरियंस कर रहा है वो चीज़ वो नहीं छोड़ा, तो मेरा भी नहीं दिल चाहता था कि व्हाई शुड आई लीव द फास्ट इफ ही इज नॉट लीविंग. लेकिन उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह I am very consistent with fasting. Then the thing called periods hit me, or फिर I realized you can't really fast in when you're on your periods, obviously, because you can't pray when you're on your periods. मुझे ये नहीं कब कुछ ऐसा बात पता चला कि the fast that you skip in your while you're on your periods are not the fast you can मतलब के are not, you can't skip them. मतलब कि you have to मतलब के बाद में जाके you have to fast for the days you didn't. ठीक है ना, for the days you had periods. I didn't know that, or that's मतलब के that's something that I have no मतलब के मतलब कि आई एम नॉट इन कांटेक्ट कि मैंने कितने रखने थे और मैंने रख लिए या मैंने किए भी नहीं. लेकिन इस बार से आई विल ट्राई, क्योंकि मैं हमेशा भूल जाती हूँ, लेकिन इस बार से आई रियली रियली ट्राई कि मेरे जो भी हो रहे हैं स्किप वो मैं बाद में रखूँ. क्योंकि विद नमाज जो भी आपका प्रेयर स्किप हो रहा होता है वो जो है मतलब कि यू डू नॉट हैव टू प्रे द prayers you skipped while you're in your periods. लेकिन with रमजान you have to fast the days you skip. खैर, um before we get into the planning वगैरह सब कुछ, first of all, this is something that I discovered, not I didn't discover, but I was going through Twitter, my favorite app, a few days ago, and I found this piece of information which is very मतलब कि which is very interesting to me. So I really wanted to share with you all. It's basically it's मतलब why I can't really explain it, लेकिन it basically is कि why Ramadan is called Ramadan, कि मतलब रमज़ान का word, where is रमज़ान का word derived from. जब भी हम कोई साइंस में स्पेशली चीज़ पढ़ते हैं तो, या फिर कहीं भी पढ़ते हैं, लेकिन बेसिकली साइंस में या कोई भी हम नई टर्म पढ़ते हैं, तो हम बेसिकली सबसे पहली लाइन उसकी होती है कि ये वर्ड यहाँ से डिराइव हो रहा है, और उसके बाद वी गो इनटू द डिस्क्रिप्शन.
तो फिर इस वजह से इधर भी डिस्क्रिप्शन में जाने से पहले आई वुड रियली लाइक टू शेयर दिस विद यू ऑल कि रमज़ान का वर्ड कहाँ से डिराइव होता है। तो रमज़ान का वर्ड comes from the word रमज़, जिसका मतलब होता है बर्निंग, इट्स लिटरल मीनिंग इज बर्निंग। और इमाम कुर्तुबी जो हैं वो उनका वो फरमाते हैं कि इट was named रमज़ान because it burns the sin of people with good deeds. It's very self-explanatory for the month what Ramadan is and what Ramadan means to Muslim, that they practice it, and मतलब कि they literally change their lifestyle for this month, especially for this month. What I don't like about some people is that the conversation के ओ एक महीने का मुसलमान, ओ एक महीने के लिए सब मुसलमान बन जाते हैं, या एक महीने के लिए तुम मुसलमान बन गए हो। आई डोंट लाइक दिस कॉन्वर्सेशन क्योंकि इट्स वेरी डिस्करेजिंग। आई थिंक वी शुड बी encouraging people to come in rather than discouraging them, क्योंकि that's a very discouraging statement to tell someone कि यार you're not valid as a Muslim क्योंकि you're just coming here for a month. That's none of your business बेसिकली, कि कोई एक महीने के लिए आ रहा है या एक दिन के लिए आ रहा है। यू शुड बी इंकरेजिंग देम, यू शुड बी टेकिंग इट एज अ पॉजिटिव थिंग, ताकि वो अगला बंदा रमजान के बाद भी वो चीज़ कंटिन्यू रखे। लेकिन आप उसको इतना डिस्करेज करे, उसने वो भी नहीं करना जो वो कर रहा है। एंड आई थिंक इट्स गुड कि कोई इवन इफ देर नॉट रेगुलर प्रेयर, फिर भी दे उनको इस महीने का इतना एहतराम है कि दे मतलब कि वो कहते हैं कि यार मैं पूरे साल की बेशक नमाजें छोड़ दूं, लेकिन मुझे इस महीने की नमाजें नहीं छोड़नी, मुझे इस महीने की हर नमाज पढ़नी है। और मे बी इंशाल्लाह वो इस चीज़ को कंटिन्यू करें, होपफुली। लेकिन आई डोंट थिंक यू आर नो वन टू टेल समवन कि यार तुम एक महीने के मुसलमान हो और यू आर नॉट वैलिड जस्ट बिकॉज यू आर कमिंग। ऑब्वियसली इस मतलब कि देखो कोई इंसान रमजान का इतना एहतराम करता है, ऑब्वियसली रमजान इज अ वेरी स्पेशल मंथ, और हर किसी का अपना अपना प्लान होता है कि उन्होंने उस मंथ में कितना अचीव करना है। और अगेन आपका एक इट इज अगर कोई एक महीने के लिए भी मुसलमान बनना है, क्योंकि आपका एक जो आप अच्छा काम करो उसका आपको 70 गुना ज्यादा सवाब मिल रहा है। तो ऑब्वियसली एवरीवन वुड बी वांटिंग टू प्रे रेगुलरली एंड मतलब recite Quran or do all other things. तो I don't think that it's a valid thing to tell someone कि तुम एक महीने के मुसलमान हो। That month is the most special month, तो you shouldn't take it as a regular month or a regular month. Obviously आपको पूरे साल नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन हर किसी की अपने अपने स्टेप्स होते हैं। तो कोई इंसान जो कि नमाजें नहीं पढ़ रहा और वो उस मंथ के लिए स्पेशली नमाजें पढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो उस चीज़ से ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि रमज़ान का महीना स्पेशल है और वो उस चीज़ का एहतराम करता है। जो इंसान अ, नमाज पढ़ता है लेकिन कुरान नहीं पढ़ता, वो उस महीने में कुरान पढ़ रहा है। कुछ लोग कुरान स्लो पढ़ते हैं, तो वो उस 30 दिन में कुरान पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं। तो दैट्स रियली योर पर्सनल थिंग दैट यू हैव टू डिसाइड कि मुझे कितना करना है। ऑब्वियसली यू कैन encourage पीपल कि यार इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करो, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा चीजें करो। लेकिन आप किसी को डिस्करेज नहीं कर सकते कि तुम मतलब वैलिड ही नहीं हो क्योंकि तुम तो सिर्फ एक महीने के लिए यहाँ पे आए हो। तो आई डोंट लाइक दिस कॉन्वर्सेशन। और आई वाज सीइंग दिस वन पॉडकास्ट, नॉट मी शेडिंग अनदर पॉडकास्ट, लेकिन आई वाज सीइंग दिस अदर वेरी फेमस द टॉप पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान, कि उसमें दो लोग बैठ के जो हैं वो ये शेर पढ़ रहे हैं कि मस्जिदों के दायरे बड़े कर लो, एक महीने का माना जाता है। आई रियली डोंट डिडंट लाइक दैट शेर। आगे से वो कह रहे ओ माय गॉड क्या कह दिया, वाह 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 वाह। इट्स मतलब कि इट्स नॉट मतलब कि इट्स वेरी डिस्करेजिंग टू टेल दिस टू अदर पीपल, इट्स वेरी डिस्करेजिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द रूल नंबर वन इज दैट कि किसी को डिस्करेज ना करें, ठीक है ना। हर किसी का अपना अल्लाह के साथ अलग ताल्लुक है और हर किसी के अपने गोल सेट हुए हुए हैं। आपको नहीं ज़रूरत किसी को मतलब कि ऐसा करने की, और that would be really मतलब that would be bad. Another thing about Ramadan is that कि as I mentioned earlier कि आप जो भी नई religious habit develop करते हो वो आप साथ लेके चलते हो for the rest of the year.
this मतलब कि if you start something, be it reciting Quran, be it reading Quran with तफसीर, तो दिस मतलब कि अगर आप इस महीने में कर रहे हो तो आपकी एक रूटीन बन गई, आप 30 दिन से एक चीज कर रहे हो और आप एक्चुअली वो चीज अगली अपनी एज अ लाइफ स्टाइल अडेप्ट करके आगे कर सकते हो। तो दिस मंथ इज अ वेरी गुड मंथ, is a very good, good is not the मतलब it's a very, हाँ, it's a very good opportunity for you to develop more spiritual reality related habits, even kindness related to मतलब कि all the good habits you, this month is very good। even फजर के टाइम उठना, फजर की नमाज पढ़ना, मैं खुद फजर की नमाज कज़ा पढ़ती हूँ, which is not a very thing to say out aloud, it's very embarrassing, लेकिन what I look forward to is that कि मे बी रमज़ान के बाद मेरी वो रूटीन बन जाए कि मैं हर फजर फिर उठ के नमाज पढ़ूँ, अगर मुझे फिर से भी वापस सोने जाना पड़े और मुझे करना पड़े। तो आई थिंक कि हर, तो इस वजह से ये महीना एक बहुत अच्छा महीना है जिसमें आप जो है वो नई चीज़ें अडेप्ट कर सकते हो और जो है वो एक बेहतर मुसलमान बन सकते हो। तो इस वजह से आई डोंट थिंक, तो ये आर्गुमेंट कि यार एक महीने का मुसलमान इज़ वेरी डिस्करेजिंग, आप उनको ऐसा कुछ कहो कि वो चीज़ें जो उन्होंने एक महीने के लिए की हैं उसको वो कंटिन्यू रख सकें। The second thing is that growing up for me, I always had Ramadan in summer vacations, which is very मतलब which was a very, which was a blessing, क्योंकि we had off, तो we used to go to tuition, लेकिन हम पे वो academic stress नहीं था जो स्कूल जाने के लिए होता है। तो growing up we always have had Ramadan in summer vacations। उसके बाद we had exams in Ramadan too, board exams specially। उसके बाद in 2019 मैं जब अपने यूनिवर्सिटी के सेकेंड सेमेस्टर में थी, that was the first time I experienced fasting while going out to for education, for study। um it wasn't bad, but definitely takes a lot of a big chunk of your time। और क्योंकि आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, वहाँ पे आप 6 घंटे कर रहे हो और उसके हिसाब से आपको रूटीन सेट करनी पड़ती है, फिर उसमें भी टेस्ट्स होते हैं, असाइनमेंट्स होती हैं। तो आई विश कि मैं मतलब कि ऑब्वियसली आई डोंट नो हु एम आई टू से इट, लेकिन मुझे नहीं पता कि इफ इट्स द बेस्ट थिंग, लेकिन आई वुड लव के us all of us the state basically, तो ये मेरा फैसला नहीं है, लेकिन I would love the state to maybe decide the fact कि we should give children 1 month off for Ramadan। मतलब कि I don't see anything bad in it। आप अपना सिलेबस उस हिसाब से अरेंज कर लो। There's a lot of people I know जिनके रमज़ान में एग्जाम्स हैं, मिड टर्म है, या उनके फौरन बाद, ईद के फौरन बाद बोर्ड हैं। तो वो कैसे, मतलब कि वो तो पूरा महीना, और इतना स्पेशल महीना है अगर हमारे लिए, तो आप मतलब कि वो तो पूरा महीना उस तरह कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि उनको तो एकेडमिक स्ट्रेस ज़्यादा है। और देन अगेन दिस दीन दुनिया कंपैरिजन आई डोंट वांट गो इनटू, ऑब्वियसली पढ़ाई, लेकिन ऑब्वियसली पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप जिस स्टेज पे आप होते हो उस वक्त आपको पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ लगता भी नहीं है, व्हिच इज़ सैड बट इट्स ट्रू। आप नहीं एग्जाम में फेल होना अफोर्ड कर सकते ऑब्वियसली, और कोई मतलब कि आपको करना भी नहीं चाहिए, लेकिन यही बात है कि फिर आप उस तरह नहीं उस मंथ को प्रैक्टिस कर सकते जिसका जिस तरह आपका दिल चाहता है, जिस तरह आपको करना चाहिए। तो मुझे पर्सनली लगता है कि द स्टेट शुड अनाउंस अ मंथ ऑफ फॉर रमज़ान, बेशक कट इट ऑफ फ्रॉम द समर वेकेशंस, लेकिन देर मतलब कि एवरी मुस्लिम कंट्री शुड हैव अ मंथ ऑफ फॉर रमज़ान। बस पाकिस्तान शुड, दैट्स माय ओपिनियन। और इफ एनीवन फ्रॉम द गवर्नमेंट इज लिसनिंग टू दिस, तो मतलब प्लीज लुक इनटू इट। आई थिंक कि आपको सब कहेंगे कि जॉब वालों का क्या मतलब कि कसूर है। आई थिंक विद जॉब थिंग्स आर डिफरेंट, क्योंकि यू आर, इट्स नॉट दैट स्ट्रेस, मतलब कि इट इज स्ट्रेसफुल, लेकिन एकेडमिक प्रेशर इज समथिंग एल्स। विद एकेडमिक you have to feed things in your head and you have to then write it down, मतलब कि write it down is not the part here, लेकिन आपको एक चीज मेमोराइज भी नहीं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट्स गैस गैस आपको कॉन्सेप्ट समझने होते हैं, आपको नई चीजें समझनी पड़ती हैं, आपको एग्जाम का स्ट्रेस होते हैं। विद वर्क
यू जस्ट हैव टू वर्क, और उसमें आपका इतना जहन खर्च नहीं होता। ऑब्वियसली होता है, लेकिन जितना पढ़ाई में होता है उतना नहीं होता। आई डोंट नो, मुझे पता है कि कोई आके कहेगा कि नहीं मेरी ऑफिस लाइफ ज़्यादा हेक्टिक है, मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ या फिर मेरी पढ़ाई इतनी हेक्टिक नहीं थी। आई डोंट नो, लेकिन मेरे अपनी जो एक्सपीरियंस है और मेरे आसपास के लोगों का एक्सपीरियंस है वो यही है कि ऑब्वियसली ऑफिस लाइफ इज़ वेरी हेक्टिक, स्पेशली इफ यू आर फिजिकली वर्किंग। लेकिन उसमें ये है कि इट्स नॉट दैट ब्रेन कंज्यूमिंग, एंड आप फिर भी एसी में बैठ के आराम से अपना काम कर रहे हो, एज कम्पेयर टू स्कूल इट्स मच मोर, आई थिंक एज कम्पेयर टू स्कूल एंड स्टडिंग इट्स मच मोर माइंड कंज्यूमिंग, और आप और स्ट्रेसफुल भी वो ज़्यादा है। इवन ऑफिस कैन मे बी प्रैक्टिस द फैक्ट के ज़्यादा बर्डन ना दें लोगों को, लेकिन आई डोंट नो हाउ कॉर्पोरेशन वर्क, मैं किसी को नहीं कर सकती। लेकिन विद स्कूल आई थिंक वी कैन मैनेज गिविंग द किड्स मंथ ऑफ फॉर रमजान। हम स्प्रिंग ब्रेक भी तो देते हैं, तो हम अपना सिलेबस ऐसे अरेंज नहीं कर सकते कि वो एक महीने की ऑफ ले लें। फॉर मी पर्सनली, जब भी रमज़ान हुआ है ना, तो मैंने अपनी एकेडमिक जो भी चीज़ें थी ना वो साइड पे रख दी हैं, रखी थी। जब मैं छोटी थी तब तो ऑब्वियसली समर वेकेशन थे, तो तब तो इतना मतलब कि टेंशन का सीन ही नहीं था। उसके बाद आई हैड बोर्ड एग्जाम्स फॉर 2 years इन रमज़ान। वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वैसे ही मतलब मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, तो मुझे वैसे स्ट्रेस नहीं था एग्जाम्स का। उसके बाद इन यूनिवर्सिटी इन 2019 देन इन 2022 मैंने रमज़ान देखा था वाइल गोइंग टू यूनिवर्सिटी। इट्स वेरी हेक्टिक, लेकिन मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी जाती थी, मैं घर आके कुछ नहीं पढ़ती थी बेसिकली। अच्छी बात ये थी कि एग्जाम्स नहीं हो रहे थे, लेकिन मुझे पता है कुछ लोगों के मिड टर्म्स हो रहे हैं, तो इस वजह से मैं मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी स्पेशल मंथ, और इट्स वेरी अनफेयर कि कुछ लोगों को अपने टेस्ट की ज़्यादा टेंशन हो, क्योंकि दे कांट अफोर्ड फेलिंग दैट टेस्ट। वो मतलब ऑब्वियसली कोई कहेगा कि कबर में वो मार्क्स थोड़ी लेके जाने हैं, लेकिन आप नहीं अफोर्ड कर सकते टेस्ट में फेल होना या अपने सेशन में फेल होना। आपके माँ बाप ने फीस दी है, आप नहीं वो पैसे ज़ाया कर सकते। तो मुझे लगता है कि आपको इंस्टीट्यूट को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने बच्चों पे ज़्यादा बर्डन ना डालें इस महीने में, एंड लेट देम प्रैक्टिस एंड द मंथ। देन आई पर्सनली, मेरा जो है इस बार रमज़ान शुगर अल्हम्दुलिल्लाह इज गना बी, आई वांट इट टू बी द बेस्ट रमज़ान आई हैव had in the past 22 years. I really want to make the best out of it. I think I have always been a Muslim, lekin I now strive to be a mu'mina. I want to be a woman, or I have been constantly trying to मेक माई सेल्फ अ बेटर मुस्लिम, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पे वहाँ वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई आ गई है। एंड आई एम रीडिंग अ वेरी, मतलब क्या वेरी नहीं, लेकिन आई एम रीडिंग अ बेसिकली अ स्पिरिचुअल बुक आजकल, क्योंकि आई वांट टू लर्न मोर, आई बेसिकली वांट टू लर्न मोर, आई वांट टू स्टडी Quran. I hope that's the right words to say. Word to say. I don't just want to read Quran. I want to study Quran. I want to be expert in it. मतलब कि एक्सपर्ट का मतलब ये मुझे नहीं पता कि किस कॉन्टेक्स्ट में लिया जाए। एक्सपर्ट का मतलब ये है कि मुझे उसकी हर आयत का पता हो कि इसका क्या मतलब है, इसके मफहूम क्या है। और यही बात है कि जैसे लोग कहते हैं कि कुरान का एक तो लिटरल तर्जुमा है ना, और एक उसकी अंदर गहरी और इतने ज़्यादा मतलब हैं जो कि अ, आप आम इंसान को नहीं पता लगते। आपको कुछ लेवल ऑफ मोमेंट हिट करना पड़ता है वो चीज़ें जानने के लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने अंदर बहुत से मैसेजेस दिए हैं, तो मुझे वो चीज़ें देखनी है। और इट्स अ वेरी इनिशियल स्टेज, अभी तो मैंने सिर्फ सोचा है इस बारे में, लेकिन आई होप आई कैन बी कंसिस्टेंट विद दैट। और क्योंकि रमज़ान आ रहा था, तो मुझे लगा कि दैट मंथ इज़ अ वेरी गुड मंथ टू स्टार्ट फ्रॉम इट। तो बेसिकली मैं जो भी हैबिट्स डेवलप कर रही हूँ, मैंने वो इस तरह ही अरेंज किए हैं कि वो हैबिट्स हों जो मैं बाद में जाके भी कंटिन्यू कर सकूँ, मतलब कि कर सकूँ, मतलब कि करती रहूँ। ठीक है। और और बात ये है कि आई नो एवरीवन डोंट हैव द प्रिविलेज दैट आई हैव दिस रमजान टू स्टे एट होम, और मैं सब कुछ मैंने प्लान किया हुआ है, क्योंकि मेरे लिए बड़ा इजी है सब कुछ कहना। लेकिन आई वुड ट्राई टू टेल यू ऑल थिंग्स यू कैन अडेप्ट इफ यू आर गोइंग टू योर स्कूल कॉलेज
whatever, or office, um क्योंकि आई वुड बी वर्किंग टू ऑब्वियसली, लेकिन दैट्स इट. तो आई विल बी टेलिंग यू ऑल माई प्लान. आई एम वेरी एक्साइटेड, और आई एम ऑल्सो एक्साइटेड फॉर सेहरी एंड अफ्तारी. मुझे उसकी बात मैं एंड पे करूँगी. लेकिन आई हैवंट प्रेप्ड एनीथिंग फॉर सेहरी एंड अफ्तारी, और अगर थर्सडे को रोज़ा हो गया तो मुझे नहीं पता, तो आई हैव टू कल डू समथिंग फॉर इट. लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर अफ्तारी. लेट्स सी किस दिन मेरा बर्न आउट होता है अफ्तारी का, क्योंकि अफ्तारी इट्स वेरी स्ट्रेसफुल एक्चुअली. इवन सहरी, जो सहरी बंदा बना रहा होता है, आई हैव नेवर एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड मेकिंग सहरी, क्योंकि मैं हमेशा, ये मैं वैसे एंड पे डिस्कस करूंगी. दिस इज मतलब कि दिस इज द जनरल फन डिस्कशन, ये एंड पे करेंगे. पहले जो है मैं जो अपने गोल्स हैं वो बता दूं. इट्स 2:28 AM एंड इट्स एक्चुअली वेडनेसडे, व्हिच इज़ अ वेरी बैड थिंग. तो नेक्स्ट टाइम से रबिया आप अपनी एपिसोड पहले रिकॉर्ड करना. और आई एम वेरी स्लीपी राइट नाउ, यू कांट टेल, बट आई एम रियली वेरी स्लीपी राइट नाउ. अच्छा, तो माय फर्स्ट गोल इज दैट के बेसिकली विद प्रेइंग, मैंने जब मैं बहुत छोटी थी, या जब आई लर्न के इस नमाज के इतनी रकात होती हैं, तो उसके कुछ अरसे बाद मुझे पता चला कि ओ जैसे असर है, तो यू कैन जस्ट प्रे 4 फर्ज इफ यू आर इन हरी, और उसके बाद मतलब कि जो फोर सुन्ना है वो आप फिर सुन्नत, जो फोर सुन्नत है वो आप आगे ना पढ़ो, अगर आप मतलब कि नहीं, उसका गुनाह नहीं है अगर आप छोड़ दो. और फिर उसके बाद ईशा की नमाज, जो है ईशा की नमाज बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी नहीं होती, लेकिन इट्स द लॉन्गेस्ट प्रेयर. और फिर मुझे पता चला कि नहीं, यू कैन मतलब कि बेसिकली वैसे ईशा की जो नमाज है दैट इज 4 फर्ज, 4 सुन्नत, 2 सुन्नत, 2 नफल, 3 वितर, 2 नफल. लेकिन फिर मुझे पता चला, किसी ने बताया कि यू कैन डू 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 3 वितर, दैट्स द शॉर्टकट. और जब मैंने वो सुना और मैंने वो चीज़ें ऐसी अडेप्ट की कि मैंने, अब मुझे याद ही नहीं है कि मैंने ईशा की पूरी नमाज लास्ट कब पढ़ी थी, वो इज अ वेरी एम्बेरसिंग थिंग. या फिर विद असर मुझे याद नहीं है कि मैंने 4 फर्ज, 4 सुन्नत पूरे कब पढ़े थे, क्योंकि अब बस मैं 4 फर्ज पढ़ के फारिग हो जाती हूँ कि हाँ हाँ, इवन तो मुझे जल्दी भी नहीं होती, आई डोंट हैव टू गो समवेयर, लेकिन मैं बस ऐसे ही करती हूँ, विच इज़ अ वेरी बैड हैबिट. मैंने नफल जो है, जब कुछ मुझे मांगना हो, या किसी का चीज़ का शुक्र अदा करना हो, या मुझे मतलब कि माफ़ी मांगनी हो, या कुछ भी करना हो, तो मैं नफल पढ़ती हूँ. लेकिन जो नमाज के साथ है, जैसे जोहर, असर, मगरिब, हर चीज़ हर नमाज के साथ, फजर के अलावा नफल है, मैं कभी भी जो है वो मैंने नहीं पढ़े कि ओ दे आर नॉट मैंडेटरी, तो मुझे छोड़ देने चाहिए. तो what I want to adapt this Ramzan really is that कि I want to pray the full prayers. फजर की पूरी पढूं, जोहर की पूरी पूरी पढूं, असर की पूरी पढूं, मगरिब की पूरी पढूं, और ईशा की भी पूरी पढूं. तो सबसे पहली तो मेरी ये, क्योंकि दिस इज समथिंग अगेन दैट आई वांट टू कंटिन्यू डूइंग, तो दिस इज समथिंग आई वांट टू अडेप्ट इन रमजान, क्योंकि रमजान इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट न्यू थिंग्स एंड देन यू कैन अडेप्ट, keep doing them for the rest of your life, inshallah. So this is something that I really 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 want to do. Then this is my goal number one, and this is something that even if you're in मतलब कि if you're going to office, or if you're मतलब going to school, or you have exams, this is something that you can adapt to this month, क्योंकि it doesn't take a lot of time. मुझे पर्सनली नमाज, मुझे लगता है कि मैं नमाज पे पूरी एक अलग पॉडकास्ट ज़रूर बनाऊंगी. लेकिन नमाज जो है ना, उसकी सिर्फ नियत करना मुश्किल होता है, नमाज पढ़ना एक्चुअली मुश्किल नहीं होता, नमाज लंबी भी नहीं होती. एंड वंस यू स्टार्ट प्रेइंग एंड वंस यू आर रेगुलर विद इट, तो जब आप एक नमाज बीच में से मिस करते हो ना, तो आपको खुद फील होता है कि यार मैंने मिस कर दी नमाज, तो आपको खुद. लेकिन जब आप रिपीटेडली नमाजें मिस करते रहोगे, तो आपको फिर फील वो होना छोड़ दोगे, और आपको फिर रियलाइज नहीं होगा जब भी कोई अजान होगी कि यार मैं इस चीज़ की नमाज मिस कर रही हूँ. इस वजह से बस नमाज की नियत करना मुश्किल है कि यार मैंने नमाज पढ़नी है, लेकिन नमाज के लिए एक बार आप खड़े हो गए हो ना, तो फिर नमाज बहुत ईजी है, और उससे ज़्यादा सुकून दे कोई काम नहीं है.
जब भी मैं नमाज सारी पढ़ के रात को सोती हूँ ना, तो मुझे इतनी अच्छी नींद आती है और मैं बहुत खुश सोती हूँ कि यार, मैं सोचती हूँ कि यार, अगर इफ आई डाई while स्लीपिंग, या इफ आई डाई टुनाइट, आई प्रेड, ठीक है ना, मैंने आज सारी नमाजें पढ़ी हैं, तो आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ डाइंग अगर मैं आज मर गई। लेकिन अगर मैंने किसी दिन कोई नमाज मिस की होती है, तो आई एम स्केर्ड ऑफ डाइंग कि अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगी। तो आई थिंक नमाज ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ पीस, इट मुझे और वर्ड समझ नहीं आ रहा, लेकिन इट मेक्स यू हैप्पी। वो सुकून देती है आपको, मुतमिन करती है, आपका डर खत्म होता है चीज़ों के लिए। तो नमाज इज़ अ वेरी पीसफुल थिंग। और जैसे कि मैंने कहा कि मैं शॉर्टकट नमाजें पढ़ रही थी फॉर ईशा एंड फॉर असर, तो और नफल भी नहीं मैं पढ़ रही थी। तो दिस रमज़ान व्हाट आई वांट टू डू इज़ दैट कि मैं जो है वो अडेप्ट करना चाहती हूँ कि मैं पूरी नमाज पढूं। The next thing is कि I am not very proud to say that, यहाँ जो भी मैं कन्फेशन कर रही हूँ ना, आई एम वेरी embarrassed to say all of this, लेकिन मैंने कभी तरावी नहीं पढ़ी। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने लास्ट तरावी कब पढ़ी थी। और मुझे कभी टाइम टाइम ये बहुत फजूल रीज़न है कि मुझे कभी टाइम नहीं मिला। लेकिन मैंने तरावी कभी नहीं पढ़ी, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन मेरे जहाँ पे मैं रहती हूँ, जहाँ पे मैं पहले भी रहती थी, वहाँ भी तरावी होती थी, और जहाँ पे मैं अब भी रहती हूँ, वहाँ पे तरावी होती है इन मस्जिद। और आई थिंक कि मुझे मस्जिद में नमाज पढ़ने का बहुत मज़ा आता है, इवन दो आई एम औरत। और औरत जो है वो मस्जिद में नहीं, वो घर में नमाज पढ़ती है ऑब्वियसली। लेकिन मैंने पहली बार, मुझे याद है कि रमज़ान में जहाँ पे मैं पहले रहती थी, तो जुम्मे की नमाज जो है वो उस रमज़ान में सिर्फ कि वो जुम्मे की नमाज में वो औरतों को भी अलाउ करते थे, तो मैं वो पढ़ने जाती थी, मुझे बहुत मज़ा आता था। देन ईद की नमाज, मतलब कि आई लव गोइंग फॉर ईद की नमाज, तो वो भी मैं मस्जिद में जाती थी, वो भी मुझे बहुत मज़ा आता था। तो विद तरावी आई थिंक इट वुड बी नाइस टू बी, मतलब कि टू गो टू अ मस्जिद जहाँ पे इतनी ज़्यादा और औरतें हैं और उनमें तरावी पढ़ना, आई थिंक दैट वुड मोटिवेट मी टू प्रे। तो व्हाट आई वांट टू डू दिस रमज़ान इज़ दैट के आई रियली वांट टू प्रे तरावी, और आई वांट टू गो फॉर द तरावी प्रेयर्स ऑल द 30 days माइनस द पीरियड्स वाले डेज। लेकिन मुझे तरावी के लिए जाना है, और मैंने ज़रूर तरावी पढ़नी है, और आई होप आई गो, क्योंकि दैट्स समथिंग, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अपने 2 घंटे निकालने पड़ेंगे वट एवर आई एम डूइंग वहाँ से तरावी पढ़ने के लिए। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं एक दो पढ़ूंगी, फिर मैं कंसिस्टेंट हो जाऊंगी, और फिर इट वुड बी अ पार्ट ऑफ रूटीन। लेकिन दिस इज समथिंग दैट आई कांट टेक विद मी आफ्टर रमज़ान, क्योंकि रमज़ान मेरी तरावी होती है बेसिकली। तो this is something that I want to do. I think the नमाज की thing is the, देखो 5 वक्त की नमाज पढ़ना इज द बेयर मिनिमम यू कैन डू, और मैंने पूरी पढ़नी है, तो आई थिंक नमाज इज द, फॉर मी, मैं हर किसी, आई एम नॉट मेकिंग द रूल्स, लेकिन दीज आर द रूल्स आई मेड फॉर मी एंड दैट आई मेड फॉर माई सेल्फ इन माई हेड, कि फॉर नमाज अगर मैं 5 वक्त की पढ़ी हूँ, तो दैट्स द बेयर मिनिमम आई कैन डू इन द मंथ ऑफ रमज़ान। इतना स्पेशल महीना है जहाँ पे मुझे एक गुड डीड का 70 बार सवाब मिल रहा है, और मेरे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है टू बर्न और माई सिंस। तो इसमें मैं सिर्फ जो नमाज पढ़ी हूँ वो मेरे लिए मेरा बेयर मिनिमम है। उसके बाद आई वांट टू प्रे तरावी, क्योंकि तरावी इज़ दिस स्पेशल थिंग इन रमज़ान, द एक्स्ट्रा थिंग, और आई वांट टू प्रे तरावी। what I again, this is something that I want to adapt and I want to do after Ramadan, जैसे कि मैंने कहा I want to study Quran, और दिस इज़ अगेन समथिंग आई एम रियली एम्बेरस्ड। लेकिन जब तक मैं कारी साहब से पढ़ती रही हूँ, तब तक मेरा कुरान का तलफ़ुज़ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा नहीं था लेकिन अच्छा था, और अच्छा था। उसके बाद और अच्छा था उसके बाद जो है फिर मैंने, अगेन आई एम वेरी एम्बेरस्ड, मुझे शर्म आ रही है कहते हुए कि मैं फिर कभी कभी ओकेजनली पढ़ने लग गई, और उसकी वजह से मेरा तलफ़ुज़ अब आके मुझे लगता है कि इट्स नॉट दैट वेल, जिसकी वजह से मैं सिर्फ कुरान पढ़ना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे अपने तलफ़ुज़ पे गौर करना है। मैं कुरान सुनना भी चाहती हूँ, और साथ में उसकी तफसीर भी करना चाहती हूँ। तो मेरा ये गोल बेसिकली नहीं है कि मुझे 30 कुरान ख़त्म करने हैं इस पूरे महीने में पढ़ के। मेरा बेसिकली ये है कि मुझे तफसीर के साथ कुरान पढ़ना है, जितना भी मुझसे पढ़ा गया। देयर इज़ अ लॉट ऑफ लेक्चर्स ऑन यूट्यूब, मुझे एक्चुअली नहीं पता कि मैंने अभी किसके सुनने हैं।
लेकिन मुझे लोगों ने रिकमेंड किए मैं तो आई सी एंड आई पोस्ट ऑन स्टोरी कि मैं पर्सनली किसके सुन रही हूँ, मैं लिंक भी उसका डाल दूंगी कि अगर कोई और मेरी रिकमेंडेशन वाले बंदे से सुनना चाहते हैं तो सुन ले। लेकिन दिस इज समथिंग दैट आई रियली वांट टू डू एंड आई वांट टू नोट इट डाउन, क्योंकि आई सी पीपल जर्नलिंग फॉर कुरान एंड दिस इज समथिंग आई रियली वांट टू डू टू। तो आई वांट, so this is something that I really really want to do, and this is something that I want to adapt and make sure that I'm practicing after Ramadan too. So reading Quran with tafsir, this is one of my main goal, and this is again, ये जो भी मेरे गोल हैं ये मैंने पहले एक्सपीरियंस नहीं किए हुए, तो ये सारे मेरे लिए बहुत नए हैं। um, then again मुझे लगता है कि आई टेल यू ऑल अबाउट माई रूटीन, क्योंकि अभी मैंने खुद भी नहीं सोची हुई, तो मैं अभी करूँगी तो मैं बताती हूँ कि एक्चुअली द सीन इज दैट पागल हूँ ना मैं, मुझे अच्छी लैंग्वेज में बात भी नहीं करनी आती। लेकिन अच्छा, तो बात ये है कि अच्छा नाउ मतलब मुझे लगता है मैंने अपने बेसिक गोल्स बता दिए, तो नाउ वी कैन मूव टू द दैट रैंडम डिस्कशन दैट आई वाज ट्राइंग टू हैव, जो कि रूटीन में ही आती है। कि मैंने पर्सनली पहले मैं आई वाज ऑलवेज अ स्लीपर बिफोर सहरी, और विच इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग एक्चुअली, लेकिन मुझे सोना बहुत पसंद है और मुझे रात के टाइम सोना पसंद है। मुझे दिन के टाइम एक जब सन राइज हो जाए ना, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको वो वाली नींद आ सकती है जो आपको रात को आती है जब अंधेरा होता है। आप किसी से भी पूछ लो, जो भी सूरज के तुलू होने के बाद सोता है ना, उसकी कभी भी नींद पूरी नहीं होगी, क्योंकि आपको वैसी नींद आ ही नहीं सकती एक बार जब सूरज निकल आए। इसकी वजह से मैं हमेशा प्रेफर करती थी सहरी से पहले सोना। लेकिन जब आप सहरी के लिए फिर उठते हो ना, यू आर मेंटली मतलब के अनअवेलेबल, ठीक है ना, आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती, आपका सर फट रहा होता है, आप ना सहरी इंजॉय कर सकते हो ना आप अपनी नमाज इंजॉय कर सकते हो उस टाइम, क्योंकि आपको बस होता है मैं जल्दी से नमाज पढ़ के वापस सोने चली जाऊँ। और आप किसी से कम्युनिकेशन भी नहीं करते एंड यू आर इन अ बैड मूड, और मतलब इट्स नॉट समथिंग, और आपका सहरी बनाने का भी नहीं दिल चाहता, जिसकी वजह से सहरी आज तक जो है मुझे मतलब कि मैंने बहुत सहरी खुद कम बनाई होंगी, हमेशा मेरी मम्मा ही बना रही होती है सहरी, क्योंकि मैं सोई होती थी। लेकिन इस बार क्योंकि ऑब्वियसली आई हैव टू वॉक टू, तो इस वजह से मैंने ये अपने लिए रूटीन सेट की है कि एट नाइट आई वुड वॉकिंग द प्रोफेशनल वर्क, ठीक है ना, नॉट द हाउस चोर्स। और जो है उसके बाद मैं सहरी के बाद सोया करूँगी, और मेरी मैं ये रूटीन रखूँगी, क्योंकि मुझे तरावी भी पढ़नी है, उसके बाद मुझे काम भी करना है। और तो मैं जो हूँ वो सहरी मतलब आई वांट टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग सहरी टू, विच इज़ नॉट पॉसिबल अगर मैं सहरी से पहले सो जाऊँ, क्योंकि आई वुड बी डिस्कनेक्टेड विद द वर्ल्ड और मुझसे खाया भी नहीं जाएगा, सहरी बनाना तो बहुत दूर की बात है। तो इस वजह से आई वुड लाइक टू वेक अप द होल टाइम एट नाइट, और फिर मैं सहरी बनाऊँ, सहरी करूँ, नमाज पढ़ूँ और रैप अप करूँ, और फिर मैं सोऊं। ये मेरी स्ट्रैटेजी है इस बार। उसके बाद मैं सोऊंगी तो फिर देन आई कैन स्लीप टिल जोहर, ठीक है, एंड देन आई विल वेक अप फॉर जोहर, मैं जोहर पढ़ूंगी। और मुझे बिल्कुल टाइमिंग नहीं पता, लेकिन आई एम अज्यूमिंग कि 1 बजे, ठीक है ना, 1 बजे इट्स फाइन। तो 1 बजे तक, या लेट्स से 2 बजे तक, मतलब क्या है, जोहर पढ़ना है। उसके बाद मैं अपना जो है वो कुरान वाला जो है वो टाइम रखूंगी, तफसीर वाला, ठीक है। उसके बाद फिर 4 बजे आई स्टार्ट प्लानिंग जो है वो अफ्तारी और असर एंड अफ्तारी, और फिर अफ्तारी की तैयारी शुरू हो गई, रफ्तारी कर लिया। अच्छा, अफ्तारी का भी ये सीन है कि ना, अफ्तारी एंड सहरी इज़ वेरी स्ट्रेसफुल, क्योंकि अगर आपने टाइम पे नहीं की, तो अगर आप सहरी बना रहे हो और टाइम आ रहा है, तो आप तो मतलब कि आपके लिए बहुत कम टाइम होता है सहरी करने का। एंड विद अफ्तारी में तो अफ्तारी, क्योंकि मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है अफ्तारी का, क्योंकि कुछ अरसे से मैं ही अफ्तारी कर रही हूँ, अफ्तारी नहीं कर तो मैं रही हमेशा से ही हूँ, लेकिन बना रही हूँ। तो अफ्तारी फॉर मी, अफ्तारी इज लाइक द मास्टर शेफ कंपटीशन, क्योंकि मुझे लगता है मैं मास्टर शेफ में आई हूँ। देयर इज द क्लॉक, वो वैसे जैसे मास्टर शेफ में टिक कर देते हैं, टिक टिक टिक, और कोई वो जो पीछे वो चाइनीज वो उनका जज होता है, वो बोल रहा होता है यू हैव 10 मिनट्स लेफ्ट, ऐसे बिल्कुल एग्जैक्ट यही सीन होता है मेरे साथ
कि मैं जो हूँ ना अभी कुछ हुआ नहीं है और मैं कर रही हूँ और मैं भागी भागी जो है वो तो उस पे रख रही हूँ डाइनिंग पे, और क्योंकि मतलब कि इट्स माय फॉल्ट क्योंकि आई प्रोक्रास्टिनेट मेकिंग अफ्तारी कि मैं एंड पे आके बनाती हूँ। लेकिन दिस इज समथिंग दैट आई मतलब आई रियली वांट टू प्लान अफ्तारी, और प्लान अफ्तारी से बेसिकली ये होता है कि आपको समझ नहीं आती अब क्या बनाओ। हाँ पहले के 5 दिन बहुत अच्छे गुजरते हैं क्योंकि यू आप एक दिन आप चना चाट बना लेते हो, एक दिन आप जो है वो फ्रूट चाट बना लेते हो, एक दिन आप दही भल्ले बना लेते हो, एक दिन समोसे, एक दिन पकौड़े, एक दिन सब कुछ। लेकिन जब वो चीजें सब खत्म हो जाती हैं और फिर आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अब आप कुछ नया लेके आओगे, तो आपको समझ नहीं आती। अच्छा फिर आपको सुनने को मिलता है अच्छा फिर आज फिर पकौड़े, फिर यही और आपको समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ वैसा। लेकिन आई पर्सनली रियली एंजॉय अफ्तारी, आई पर्सनली रियली want to make new things for अफ्तारी too. I want to make अफ्तारी, लेकिन मैं इतना ज़्यादा नहीं करनी चाहती, obviously it's the month to pray, लेकिन I at least want to plan अफ्तारी। और I think that once you have it sorted out, you have it planned, तो इतना मुश्किल नहीं होता। तो I have to sneeze, sorry, pause। ओके आई डिडंट स्नीज, लेकिन बात ये है कि मेरे लिए वो मास्टर शेफ कंपटीशन से कम नहीं होता कि बस 10 सेकंड रह गए हैं और जब अजान होती है ना, मतलब कि जब शुरू होती है सायरन बजता है और मैं तब भी किचन में हूँ, मैं कहती हूँ आई फील। लेकिन दैट्स नॉट द मेन गोल ऑफ द होल फास्टिंग थिंग। लेकिन आई थिंक आई जनरली रियली एंजॉय अफ्तारी। और कुछ लोगों का ये ओपिनियन है, आई ट्रूली रिस्पेक्ट दैट, कि अफ्तारी आप सिंपल कर लो उसके बाद खाना खा लो। लेकिन मैं अफ्तारी जो है वो अफ्तारी करना चाहती हूँ। मैं पकौड़े भी खाऊंगी, मैं समोसे भी खाऊंगी, मैं सारी फ्राइड चीज़ें खाऊंगी और मैं बनाऊंगी भी। और देन आई कैन मे बी स्किप ऑन डिनर। तो आई डोंट माइंड स्किपिंग ऑन डिनर एंड हैविंग अ हैवी अफ्तारी। तो दैट्स दैट। और उसके बाद जो है व्हाट फिर अफ्तारी के बाद ऑब्वियसली आप मगरिब पढ़ रहे हो और उसके बाद ईशा हो जाती है, तो वो तरावी भी मैंने करनी है। तो आई वांट टू टे मतलब कि टेक आउट टाइम फॉर अनदर लेक्चर, मतलब जो होते हैं डेली। सो आई फाउंड आउट दिस वेरी गुड स्कॉलर, बेसिकली उनका नाम है उमर सुलेमान। ही मैंने मतलब आई डिस्कवर्ड हिम लाइक अ मंथ अगो एंड ही हैव बीन माय फेवरेट स्कॉलर एवर सिंस, क्योंकि ही इज वेरी जेंटल एंड ही इज वेरी लाइक ही हैव द नूर ऑन हिज फेस एंड ही हैव a smile on his face all the time, or I like that. I personally get a little bit, I don't know if that's something I should tell, लेकिन मैं थोड़ा सा ना इंटिमिडेटेड हो जाती हूँ जो ज़्यादा रिलीजियस लोग होते हैं, क्योंकि मुझे होता है कि मुझे इनके सामने अपना आप काफिर फील ना हो, तो मैं ज़्यादा नहीं करती। लेकिन विद उमर सुलेमान ही सो काइंड एंड ही सो जेंटल कि मेरा बहुत दिल चाहता है उनकी बातें सुनने का। ही इज इंग्लिश, मतलब कि ही इज नॉट इंग्लिश, लेकिन उस उनके जो लेक्चर्स होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। और आई रियली मतलब कि लाइक हिम। और ही इज बेसिकली द फाउंडर ऑफ यकीन इंस्टीट्यूट, एंड उनके बहुत ज़्यादा रमज़ान में सीरीज आ रही हैं। दे हैव अ सीरीज कॉल्ड एज द जन्ना, a way to Jannah series. They have this series, if you're someone who wants to finish Quran in 30 days, they have this series called 30 under 30, I think it's that, मतलब you will go on the website of Yaqeen Institute, उसमें आ भी जाएगा। तो उसमें बेसिकली वो कुरान करते हैं, तो मैं उनके लेक्चर ज़रूर सुनना चाहती हूँ। आई डोंट नो कि उनके कितने अरसे के होंगे, लेकिन मतलब कि आई रियली वांट टू फॉलो देयर कंटेंट अप फॉर रमज़ान। और दे आर रियली मतलब कि तो इफ़ यू आर रियली लुकिंग फॉर समवन, इफ़ यू आर लाइक मी अ बिगिनर एंड यू डोंट नो कि मैं किसका सुनूं किसका ना सुनूं, क्योंकि आई रियली थिंक ऑब्वियसली जब आप बचपन से होते हो तो आप वही देख रहे होते हो जो आपके पेरेंट्स देख रहे हैं या फिर आपके कोई आपको रेकमेंड कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी अपनी जर्नी तब स्टार्ट होती है व्हेन यू स्टार्ट डिस्कवरिंग पीपल योरसेल्फ एंड यू स्टार्ट लिसनिंग टू इट। तो अगर आप जो है वो किसी को मतलब कि देखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि उमर सुलेमान की बेसिकली आप वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे। एंड आई रियली रिकमेंड लिसनिंग टू हिज लेक्चर्स। एंड यूकीर इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, तो देयर लॉट ऑफ things that you can follow up for this Ramadan. And again, for students, again मुझे लगता है कि if you're a student and you have to
डू स्टडी, आई स्टिल थिंक कि आप थोड़ा सा अपना पढ़ाई का जो है वो कम रखें, क्योंकि इट्स ओके इफ यू डोंट हैव एग्जाम्स। ऑब्वियसली मुझे मतलब कि किसी के एग्जाम है उन मुझे लगता है मैं ऐसी सिचुएशन में कुछ नहीं रिकमेंड कर सकती। हाँ, मैं एग्जाम्स में भी कर सकती हूँ, लेकिन विद एग्जाम्स एटलीस्ट प्रे 5 times a day। प्रेयर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, सारी जो नमाजें मिला के मुझे लगता है 1 घंटा भी नहीं बनता। आई एंड यू कैन टेक आउट दैट मच टाइम, ऑफ कोर्स। So I think that praying is very important, and then maybe take a little lecture, or if you can मतलब कि read a page or two of Quran, तो ये हो सकता है। लेकिन लेक्चर जैसे मैं कह रही हूँ मैंने तफसीर से लेनी है, तो मे बी टेक अ लेक्चर ऑफ मतलब कि जैसे सीरीज, ये कीर इंस्टीट्यूट की सीरीज हैं। एंड देन इफ यू आर स्टडिंग और यू गो टू क्लास बट यू डोंट हैव एग्जाम्स, तो आई थिंक कि आप थोड़ा सा अपना पढ़ाई का वो चीज़ कम कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी रूटीन बहुत हेक्टिक होने वाली है। आप सहरी के बाद एक्चुअली सो नहीं सकते, क्योंकि आपको क्योंकि टाइमिंग्स भी अर्ली हो जाती हैं, क्योंकि आपको ऑफ जल्दी मिल जाता है। और फिर जब ऑफ करके आते हो तो आप इतने थके हुए होते हो, आपका दिल चाहता है बस आप घर जाके सो जाओ, और आपके पास टाइम नहीं होता। तो द ओनली टाइम यू हैव इज एट नाइट। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल प्रे, मतलब कि दैट्स द बेयर मिनिमम टू बी praying all the prayers, and then again you can take lectures, you can go for tarawih. तो it doesn't takes a lot of time and it's just for 1 month। तो I think कि अगर आप अपनी एक चीज़ थोड़ी सी कम कर रहे हो, आप ना खेलो वीडियो, और अगेन कट ऑफ योर सोशल मीडियाज। आई एम बेसिकली रियली प्रैक्टिसिंग दैट कि मैं अपने सोशल मीडियाज जो है सारे जो है अकाउंट्स वो थोड़ी देर के लिए, ऑब्वियसली आई स्टिल हैव टू बी एक्टिव ऑन द पब्लिक। ये इस पॉडकास्ट का पब्लिक आई डोंट हैव टू बी, लेकिन आई वुड लाइक टू बी, क्योंकि अब क्योंकि आई वांट टू पोस्ट पोस्ट स्टोरीज रमज़ान रिलेटेड ही, तो उस पे मैं एक्टिव होंगी। लेकिन उसके अलावा बेसिकली आई एम कटिंग ऑफ यूट्यूब और स्क्रॉलिंग फेसबुक और वॉचिंग वीडियोस और रील्स, ठीक है ना। कट ऑफ दैट एंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम। आई ट्रस्ट, नहीं, ट्रस्ट मी एंड आई प्रॉमिस यू, मुझे बोलना ही नहीं आ रहा। तो cut off those things. First of all, that's the first thing you have to do. Cut off those things. Cut off social media, or especially obviously you can't delete WhatsApp और चीज ऐसी चीजें, लेकिन you can stop watching YouTube videos and TikTok and Instagram reels for a month, or you will find a lot of time. You can stop watching movies or the series you have been watching. I personally, even though I'm reading this spiritual book, it's spiritual actually, लेकिन मुझे लगता है कि I'll take a break from it। मुझे था तो सही कि मैं रमज़ान से पहले ख़त्म कर दूँ, लेकिन I'm a slow reader। तो आई थिंक जो आप ये एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें देख रहे थे वो जो है उनसे कट ऑफ कर दें, तो यू विल हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम टू मे बी प्रैक्टिस द रिलीजियस, मतलब कि थिंग्स यू वांटेड टू प्रैक्टिस। और क्योंकि देन अगेन, और मुझे लगता है कि योर रूटीन वुड बी बेसिकली ऑपोजिट ऑफ माइन, लेकिन इट्स ओके, ओके, इट्स ओके, वी गॉट दिस। And I hope this month turns out great for every single person. I hope this is the best Ramadan for us, as matlab ke I hope we make the best out of it, and I hope when we come out of it we are very satisfied, which I was not last Ramadan. So I hope ke we come out um very satisfied, and I hope कि जब हम इस चीज़ से मतलब कि जो भी हमने इस चीज़ से चीज़ें अडेप्ट की हैं वो हम आगे लेके चलें। और आई होप कि हम लोगों, मेक श्योर यू आर एक्स्ट्रा काइंड टू पीपल, मेक श्योर यू आर नॉट कर्सिंग एनीवन और यूजिंग एनी कर्स वर्ड एवी शोखी में भी नहीं, या कुछ लोगों को आदत होती है अपने हर सेंटेंस में कोई ना कोई कर्स वर्ड बोलने की। नहीं, गुस्सा किसी पे नहीं करना, गुस्से में नहीं आना, किसी से नहीं लड़ना, लड़ाई नहीं करनी, सुलह करनी है, माफ़ी मांगनी है, और अच्छा इंसान बनना है। काइंडनेस इज ऑल्सो अ थिंग, मतलब कि ठीक है ये सब चीज़ें सही है, लेकिन आपको एक अच्छा इंसान भी बनना है। मेक श्योर यू आर डोनेटिंग, लेकिन स्माइलिंग समवन टू समवन और टॉकिंग टू समवन नाइसली,
helping someone out, or these are the things that don't cost anything, लेकिन they're मतलब कि they're also considered as charity. So make sure you're being a kind person and you're being a kind human being, क्योंकि you are a Muslim, a good Muslim when you're also a good human being. Or there's a very 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 फेमस सेइंग कि अल्लाह ताला अपने हकूक शायद माफ़ कर दे, लेकिन लोगों के हकूक नहीं माफ़ करेगा। तो अगर आप किसी दूसरे इंसान को हर्ट कर रहे हैं, तो आप मतलब के तो आप मतलब कि जितनी भी जो भी रिलीजन जो भी प्रीच कर लो, वो उस चीज़ आप नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा रिलीजन की सबसे पहली बात ये है कि आप लोगों के हकूक पूरे करें। तो दैट्स ऑल्सो बेसिक थिंग दैट वी हैव टू डू, एंड नॉट जस्ट फॉर रमजान, फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ। लेकिन दिस इज अ ग्रेट मंथ टू अडेप्ट ऑल ऑफ इट, क्योंकि योर वन गुड डीड वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 70 टाइम्स इन रिवॉर्ड। And on that note, I would sign off today. Ramadan Mubarak in advance. I'll see you guys for the first episode, not for the first episode of the Ramadan series, and for the I lost count के मेरी कितनी episodes हो गए हैं, लेकिन maybe this is the 12th episode, so I'll see you guys for the 13th episode, which would be a speech मतलब कि which would be regarding the religion, and we'll talk मतलब कि I don't know what topic I'll pick up, लेकिन let's see, जो भी मुझे इंस्पो मिली वो मैं कर लूँ, क्योंकि it would be deriving from all the information I am be gathering in जो है इस तफसीर से, या फिर जिस मर्जी से मतलब कि, या किसी बुक से, या जो भी मैं कर रही हूँ, या जहाँ से भी मैं रिसर्च कर रही हूँ, क्योंकि आई एम स्टिल न्यू टू इट। लेकिन द नेक्स्ट एपिसोड वुड बी अबाउट इट, इट वोंट बी लाइक जैसे मैं अभी भी जो मैंने ये पॉडकास्ट किया, इट्स सॉर्ट ऑफ अ डिस्कशन एंड अ कॉन्वर्सेशन। सो इट्स नॉट सम, तो मैं बहुत मतलब के जेनेरिक और ह्यूमन लेवल पे आके डिस्कशन करूँगी। इट वॉन्ट बी, डोंट एक्सपेक्ट कि मैं स्कॉलर या मुफ्ती लेवल का कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इस पोजीशन में भी नहीं हूँ, आई एम स्टिल अ वेरी बिगनर। लेकिन इट वुड बी अ कॉन्वर्सेशन स्टाइल विच आई थिंक वुड बी मोर रिलेटेबल फॉर एवरीवन, क्योंकि पर्सनली अगर मैं किसी को सुन रही हूँ और मैं किसी से रिलेट कर सकती हूँ, तो इट्स लाइक वी आर इन दिस टुगेदर एंड आई एम लर्निंग विद दैट पर्सन। तो it won't be that overwhelming, and it would be still मतलब के have giggles and मतलब के दूसरी बातें भी, और मैं अपना बताऊंगी एक्सपीरियंस, या मैं मे बी अफ्तारी रेसिपीज शेयर करूँ, या आप लोगों से सजेशन लूँ। तो इट वुड बी इंक्लूड ऑल ऑफ दैट टू। ठीक है। तो अच्छा, what I really wanted to recommend you all is that के रमज़ान है, तो we would be cutting off music एंड फॉर रमज़ान। और अगर आप कोई हाउस चोर कर रहे हो, या इवन अगर आप कोई काम ऑफिस का कर रहे हो, या कुछ भी काम कर रहे हो और रमज़ान है, तो ऑब्वियसली यू कैन लिसन टू इस्लामिक पॉडकास्ट, एंड आई हैव अ बंच ऑफ कपल ऑफ इस्लामिक पॉडकास्ट आई कुड रिकमेंड टू यू ऑल, क्योंकि दिस इज समथिंग आई वुड बी लिसनिंग टू वाइल आई वुड बी वॉकिंग। और अगर आप किचन में हो और आप काम कर रहे हो, तो आप ये साथ लगा सकते हो। या फिर अगर आप होमवर्क कर रहे हो और उसमें आपका इतना नहीं दिमाग यूज हो रहा, तो आप लगा सकते हो ये। या फिर आप ट्रैवल कर रहे हो, आप अपनी यूनिवर्सिटी जा रहे हो या वापस आ रहे हो, आप ये सुन सकते हो। तो आई थिंक के, और यू कैन ऑल्सो लिसन टू लाइक तिलावत ऑब्वियसली। लेकिन तिलावत मतलब कि अगर आप थोड़ी डिस्कशन सुनना चाहते हो, या आप थोड़ी अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हो, तो फिर आई हैव अ पॉडकास्ट रिकमेंडेशन। फ्रेश, मैं अपने ना इंस्टाग्राम पे शेयर भी कर दूंगी एक्चुअली। फ्रेशली ग्राउंडेड, then there's digital sisterhood, there's Muhammad Tim Humble, there's Ilm Feed podcast, there's Kalam Institute, there's the Mindful Muslim podcast, there's Sincerely Sumayya, there's Hijabi Diaries, Honest Tea Talk, Talk Ya Haq. दीज आर द इस्लामिक पॉडकास्ट। मैंने खुद ये 2 दिन पहले रिसर्च की हैं, तो मैंने सारी सुनी नहीं है, लेकिन दी आई विल बी ट्यूनिंग इन टू देम स्पेशली व्हेन आई एम वर्किंग। और अगर आपको कोई हिस्ट्री की, इस्लामिक हिस्ट्री की पॉडकास्ट सुननी है, तो देयर इज़ द पॉडकास्ट हेड ऑन हिस्ट्री। यू कैन ऑल्सो लुक अप फॉर इट ऑन गूगल और रेडिट। रेडिट इज़ माई बेस्ट फ्रेंड नाउ डेज। मुझे जो भी चीज़ पूछनी होती है,
तो मैं आई मतलब कि मैं वो चीज़ टाइप करती हूँ और आगे मैं लिखती हूँ रेडिट, क्योंकि उस पे बहुत जेन्युइन जेन्युइन रिकमेंडेशन होती हैं। तो आई डोंट नो व्हाई रेडिट हैवंट कॉन्कर्ड गूगल अभी तक, लेकिन रेडिट इज अ वेरी अमेजिंग ऐप। और तो you can look up for it, there are plenty of podcast out there। और अगर आप कोई भी काम कर रहे हो उसके साथ आप ये podcast सुन रहे हो, तो you will feel good। तो आपको ये नहीं लगेगा कि यार मेरा तो रोजा ये जाया हो गया, क्योंकि या कबूल नहीं होला हुआ, अल्लाह माफ करे, कि जो है वो, क्योंकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अगर आपने साथ पॉडकास्ट लगाई हुई है इस्लामिक, या आप साथ तिलावत सुन रहे हो, या इवन बहुत सी पॉडकास्ट में मेरे ख्याल से कुरान की तफसीर भी होती है, या बहुत सी बहुत मतलब कि कोई लेक्चर होता है, किसी की लाइफ स्टोरी के बारे में कुछ हो सकता है, या जो भी आप सुनना चाहते हो, देयर इज अ पॉडकास्ट अवेलेबल फॉर एनीथिंग यू वांट। तो मेक श्योर टू चेक इट आउट, एंड इट्स अ ग्रेट वे टू learn while doing something else too। और listen, मतलब कि listen to brown girl rants too, क्योंकि I would be making Ramzan special episodes। तो make sure to check that out। It's 2:59 और I have to edit this now too, and then I have to upload it too। तो everyone send me prayers कि मैं जल्दी से सोने चल जाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। लेकिन अल्लाह हाफिज एंड सी यू गाइस, रमज़ान मुबारक in advance। or let's make this Ramadan the best Ramadan ever, and let's be the best version of ourselves। Allah Hafiz।